वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर सीए रोहित श्रॉफ। मिल रहे हैं हम एक आखिरी बार ड्यूरिंग योर दिस जर्नी ऑफ इंटर सीए और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी मई 22 की आरटीपी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मई 22 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो नवंबर 21 के थे या उससे पहले अटेम्प्ट वाले थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि सर क्या अमेंडमेंट आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके लिए यहाँ पे एक जो छोटा सा आरटीपी में अमेंडमेंट है वो तो हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे, बट उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यू नीड टू कवर इस कारो 2020। आपके एग्जाम में कारो 2016 एप्लीकेबल नहीं है, आपको क्या एप्लीकेबल है, कारो 2020। तो कृपया करके आप डेफिनेटली उसको प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज यू विल डेफिनेटली सी वन क्वेश्चन दैट इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि एक सवाल आएगा फ्रॉम कारो 2020। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम आगे बढ़ते हैं विद आवर डिस्कशन ऑफ आरटीपी। अब आरटीपी में सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 का एक छोटा सा वो लोग ने क्या दिया है, अपडेट अमेंडमेंट फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब इसको मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये सेम यहाँ पे ही आगे इसी आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। तो व्हेन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 20, हम क्वेश्चन नंबर 20 में इसकी चर्चा करेंगे। सो लेट अस मूव अहेड विद अ डिस्कशन ऑफ MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हम शुरू करते हैं सिनेरियो केस स्टडी 1। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए आप मुझे पॉज कीजिए, ये पूरा केस स्टडी खुद से पढ़िए, एक बार आंसर्स भी खुद से कीजिए एंड फिर देखिए कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 क्या कहता है। सेव लाइव्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी which deals in manufacture of sanitizers, floor cleaners, dish and fabric cleaners, etc. In spite of spread of COVID-19 in the country, the company's sales have been very high in the last financial year due to the essential products it deals with. The company is highly automated and is driven by the IT system and applications that are used in the preparation of the financial statement of the company. The company uses an integrated enterprise resource planning ERP system since the last 5 years. Cran and Associates have been appointed to conduct the statutory audit of the company. The firm consists of 8 partners and CAN has been appointed as the engagement partner. CAN briefed the team about the audit and how IT would be relevant to the audit of Save Lives Limited. The team obtained an understanding of the entity and its automated environment, which involved an understanding of how the IT department was organized, IT activities, IT dependence, and the relevant risk of the controls. One of the team members wanted to understand importance of different types of controls in an automated environment: general IT control, application control, IT dependent controls. Same was discussed in detail along with relationship with different controls. The Companies Act has placed greater emphasis on the effective implementation and reporting on the internal controls for the company. So CAN decided to himself evaluate and validate the design and operating effectiveness of the internal financial controls over the financial reporting of the company as at the balance sheet date. The internal financial controls refers to the policies and procedures put in place by Sales Limited for ensuring adequacy and also the operating effectiveness of such controls. The audit team decided to use the tools and techniques that the auditor used in applying the principles of data analytics, which is known as CAT. Data analytics could also be used in testing of electronic records and data residing in IT system using spreadsheets and specified audit tools such as IDEA, ACL to perform various functions. अब इसके बेसिस के ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए। अंडर विच सिचुएशन इज IT नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। अब ऊपर के केस को छोड़ भी दे, उसके बिना भी हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो हम आंसर कर पाएंगे। कब IT ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, जब इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी होगी, नहीं तब तो चाहिए। हाईटेक नेचर है तो चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन लो है तो यस, तब अगर IT नहीं होगा तो चलेगा। कंपनी पॉलिसी कंप्लायंसेस नहीं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, एक छोटा मोटा ट्रेडर है जहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वॉल्यूम ही कम है, तो वहाँ पे IT ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। Which of the following is a risk that arises from the use of IT system? Direct data changes, yes. Limited monitor access to an extent, पर ज़्यादा क्या है ये, adequate segregation of duties, segregation of duties सही है तो क्या ही प्रॉब्लम है, authorized access तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ पे limited और monitor access है तो भी अच्छा ही है ना भाई, जितना access चाहिए उतना ही दिया है। तो प्रॉब्लम किससे होगा, जब डायरेक्ट डेटा चेंजेस किए गए हैं।
Next, the relationship between two controls is such that dash are needed to support the functioning of dash. तो भाई जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नीडेड फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल. याद करो हमने आंसर में किया था जनरल आईटी कंट्रोल फंडामेंटल, ये हमारे इसके बेसिस के ऊपर ही बाकी के कंट्रोल्स चलने वाले हैं. तो अगर जनरल आईटी कंट्रोल सही से नहीं चला तो क्या एप्लीकेशन कंट्रोल सही से चलेंगे? क्या नहीं. द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल refers to the policies and procedures put in place by the companies for ensuring which of the following. तो किसके लिए होता है भाई? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन. आगे जाके आईएफसी के बारे में इसी आरटीपी में अच्छा खासा सवाल भी हम उसे पढ़ेंगे. डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स and the data residing in the IT system using spreadsheets and specialized audit tools that is IDEA ACL to perform which of the following. तो हम ये data analytics किसके लिए यूज कर रहे हैं? Evaluating the impact of controlled efficiency, yes. Compliance with laws and regulation, no. Authorized changes to the system, no. Providing latest information, नहीं. तो आंसर यहाँ पे relevant क्या हो जाता है? Evaluating the impact of controlled efficiency. तो ये हमारा हो गया केस स्टडी सिनेरियो 1. केस स्टडी सिनेरियो 2, अच्छा खासा एक बड़ा एट लेंथ क्या दिया गया है केस स्टडी. तो वापस आपसे वही सजेस्ट करता हूं कि एक बार कृपया करके क्या कीजिए, मुझे पॉज कीजिए, पूरा केस स्टडी पढ़िए, 5 क्वेश्चन देखिए एंड फिर उसके बाद देखिए कि आंसर सही आया कि नहीं. यू आर द पार्टनर इन ABC एंड कंपनी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बेस्ड इन न्यू दिल्ली. ABC and company has been appointed as the statutory auditor of One Time Limited, a public company which manufactures and sells wall and table clocks and has many branches all over India. One Time Limited has been exporting the clocks since the past 2 years. However, the domestic sales have contributed towards the major source of revenue. You being the engagement partner have started the audit for the year ended 31st March along with the 5 team members. One of the team members, CAB, started verification of inventory. In addition to other procedures, he checked that the valuation of inventory has been recognized as per AS2. Very good. During the detailed checking, he noticed that amount spent on salary of administration employees and normal wastage of production of the clocks had not been added to the valuation of inventory. ठीक है, यहाँ पे भावुक होके सोचने मत लग जाना कि क्या सही है क्या नहीं है, एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो. The contention of XYZ Limited was that since the cost was not directly related to the production cost and so not added to the cost of inventory. CAB also noticed that one of the suppliers of One Time Limited, Mr. M, had sent some raw material to the company for the storage on their warehouses. In March 2021, due to the renovation going on at his warehouse, his stock would be damaged and so he requested One Time Limited to keep the same in their warehouse. तो उसने बोला भाई आपके warehouse में रख दो. One Time Limited contended that since the raw material was anyway billed to the company next month, so the same had been included in the valuation of the stock physically. The stock was present in the warehouse of One Time Limited on 31st of March. तो भाई इन्होंने हमारे स्टॉक के अंदर इसे काउंट कर लिया. The company has issued share at premium and the premium received on the shares have been transferred to the securities premium account. The same was then applied in writing of the expenses of selling the clocks, writing of preliminary expenses and also writing the commission paid to the sales agent. You have verified the same in detail. Another member, ठीक है, तो ये किसके बारे में था? शेयर प्रीमियम के बारे में था. Another, while verifying datas, team C noticed that there were a few trade receivables pertaining to the export, mainly to England. Mr. C verified the same with respect to the invoices issued and other supporting documents. The amount booked on 31st March was based on the exchange rate on the date of invoice. ठीक है, अब वापस क्या गलत है क्या नहीं है उसके लिए इतना स्ट्रेस मत दो. जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बेसिस के ऊपर हम वापस यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ पे अननेसेसरी दिमाग लगाना शुरू मत कर दो. जस्ट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, जस्ट गो थ्रू दिस. नेक्स्ट, मिस्टर टी, अनदर टीम मेंबर, वेरीफाइड द फिक्स्ड एसेट. ठीक है, ये किसके बारे में था? डेटर. ये अभी किसके बारे में? फिक्स्ड एसेट. ठीक है, यहाँ पे ऊपर किसके बारे में था? इन्वेंट्री. यहाँ पे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम के ऊपर था. तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में क्या बोल रहे हैं? वन टाइम लिमिटेड हैड परचेज्ड अ फ्यू कार्स फॉर इट्स डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर.
The same were appearing in the fixed asset schedule of the company. Mr. T verified the same with respect to the invoices as well as physically verified the asset in company's premise. Since the cars were for the official use of the director, they were purchased in the name of directors of the company. Mr. T verified the amount with the invoice and checked the registration and insurance document. Next, one of the clerk was assigned the work of a verification of provisions appearing in the balance sheet. He wanted to understand from you the circumstances in which provision is recognized in the books of accounts. You explained in the situation in which the entity recognizes provision. One Time Limited had invested shares of the other company. So one of the companies declared a dividend on its share. One Time Limited has not recognized the same in the profit and loss account. The team member of R has asked you to look into the matter since she is unable to understand the reasons for the same. Company spent a huge amount on repair and maintenance of the machinery used for the production of clocks. The amount was accounted in two parts. Repairs were booked as a revenue expenditure and annual maintenance charges were capitalized and added to the machinery cost. Mr. R has verified the same and raised her observation. तो ये किसके बारे में है? मशीनरी के बारे में. अब एक एक सवाल पूछा जा रहा है. Is raw material lying in the warehouse of One Time Limited accounted for correctly in his books of accounts? नहीं ना, वो तो मिस्टर एम का था, उसको बिलोंग कर रहा था, हमारे गोडाउन में उसने रखवाया था, तो क्या हमारे उसमें ऐड होएगा क्या? नहीं. तो आंसर हियर इज गोइंग टू बी नो. सिंस द सेम बिलोंग्स टू एम एंड शुड अपीयर इन हिज बुक्स. भाई हमारे बुक में कब आएगा? जब नेक्स्ट ईयर हम परचेज करेंगे तब देखेंगे, अभी क्यों भाई? नेक्स्ट, Which exchange rate is considered for accounting for foreign debtors? तो इसने क्या कर दिया था? इनवॉइस डेट का ले लिया था. तुम्हारा भाई AS11 क्या कहता है कि किसके हिसाब से करोगे? एक्सचेंज रेट जो लास्ट डे पे रहेगा 31 मार्च को. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी. Which of the following assertion with respect to asset has not been complied with? तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद नेक्स्ट है which of the following condition is not required to be met for recognizing a provision? When a possible obligation that arises from the past event or whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. तो भाई हमें नहीं पता है, तो क्या भाई उसका मैं अभी से प्रोविजन क्रिएट करेगा क्या? नहीं. तो भाई यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. तो पहला वाला आंसर ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट. लास्ट, डिविडेंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस only on the fulfillment of which condition? The entity's right to receive the payment is established. Yes, वो तो होना चाहिए. It is probable that economic benefit associated with the dividend will flow to the entity. Yes. The amount of dividend can be measured reliably. Yes. तो आंसर क्या हो जाएगा? All of the above. Next, the type of super user access to information system that enforces less or no limits on using the system is known as super access, super user access, unlimited access या privilege access. privilege access तो किसको मिलता है? यूजुअली प्रमोटर्स और XYZ लोगों को. तो हमें क्या कह देते हैं? इसे privileged access. Which of the following is not an example of inflation of payments? Making payments against fictitious voucher, चलो वो तो पेमेंट का ही है. Adjusting unauthorized or fictitious rebate, discounts, allowances to the customers to account and misappropriating the amount paid by them. अरे ये तो रिसीप्ट की बात हो रही है ना, कस्टमर से पैसा आने वक्त हम लोग कर रहे हैं, तो भाई ये क्या हो गया? ये रिसीट्स की बात. ये किसकी बात पूछी जा रही है? पेमेंट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल? तो बस यही हो जाएगा. Dash requires the firm to establish policies and procedures for retention of the dash. The retention period for the audit engagement is ordinarily not shorter from the date of the auditor's report, but if later that the date of the group audit report. तो कौन कहता है भाई ये सारी चीज़ें? हमें कौन कहता है? SQC. अब यहाँ पे 230 को मत करके आना, और नहीं करोगे क्योंकि भाई यहाँ पे क्या दे दिया है? 7 years. तो कब तक हमें रिटेन रखना है? 7 years तक. ये हमें कौन कहता है? SQC. अब अगर शायद यहाँ पे 230 में भी 7 years दिया होता तो शायद काफ़ी लोग 230 पढ़ते लिखते, बट याद करो हमने 230 वक्त भी बोला था कि ये SQC कहता है, 230 नहीं. Dash is a threat which occurs when the auditor promotes or is perceived to promote.
the client's opinion to a point where people may believe that the objectivity is compromised. तो भाई मेरे को लग रहा है क्या प्रमोट्स और इज परसीव टू प्रमोट, तो ये कौन सा थ्रेट आ जाएगा? एडवोकेसी। मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसकी भाई तरफदारी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट आता है डैश रिफर्स टू द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड to obtain an understanding of the entity and its environment, including the internal control to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud at the financial statement or assertion level. This is nothing but risk assessment procedure. अरे रैप के वक्त ही तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं just so that हमें क्या पता चले ROMMS and based on this हम क्या लगा सके हमारी NTE और further audit procedure. तो ये हमारा क्या था? Discussion of MCQs. My friends, you will have to focus a lot on MCQs. कृपया करके इंस्टीट्यूट की MCQ बुकलेट भी सॉल्व कीजिए, बिकॉज 30 मार्क्स के तो हमारे क्या है? MCQs. तो 30 मार्क्स में से अगर आप 25 टारगेट करते हो, 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट में से अगर आप एटलीस्ट 10 मार्क्स टारगेट करते हो, तो यहीं पे आपके कितने आ गए? 35. ठीक है, तो समवेयर यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम MCQs को बहुत अच्छे से सॉल्व करो. तो मेरा सजेशन ये है कि एग्जाम के वक्त पहले आप क्या रिफर कीजिए, पहले क्या सॉल्व कीजिए? MCQs. बिकॉज लास्ट में जब टाइम क्रंच होता है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट वाले वर्ड्स जो है ना वो टेंशन क्रिएट करते हैं और हम ओवरलुक कर जाते हैं. और ऑल्सो काफ़ी बार टाइम हड़बड़ी में आप मार्क करना चाहते थे A और भूल से आपने कर दिया B, तो ये भी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले आप क्या सॉल्व करो? MCQ एंड देन यू गो टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इनिशियल 15 मिनट में MCQ का पेपर नहीं मिलता है, इसलिए पब्लिक सीधा किसके ऊपर टूट पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव के ऊपर. अब पहले 15 मिनट में पढ़ो डिस्क्रिप्टिव पेपर के क्या अटेम्प्ट करने वाले हो क्या नहीं, बट लेकिन जैसे MCQ की शीट मिलती है, पहले माई सजेशन यू डू MCQs एंड लेटर ऑन डू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? MCQs. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम क्या करेंगे? हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. तो आगे बढ़ते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द पार्ट 2. पार्ट 2 किसके साथ बात करता है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला आता है भाई हमारे करेक्ट इनकरेक्ट. सबसे पहले नो एंट्री इज पास फॉर द चेक्स रिसीव्ड by the auditee on the last day of the year and not yet deposited by the bank. अरे मेरे को बताओ, क्या लास्ट दिन पे चेक्स आए तो क्या उसकी एंट्री पास नहीं करोगे क्या? अरे डेफिनेटली करनी पड़ेगी. तो ये क्या है? इनकरेक्ट है. इनफैक्ट जो हमारा कैश देते हैं, कैश के साथ ही कितने चेक्स होल्ड कर रहे हैं ऑन द 31st मार्च, वो हमें बताना पड़ता है. तो आंसर ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. अब जब हम करेक्ट इनकरेक्ट लिखते हैं, सबको पता है कि पहले क्या लिखना पड़ेगा? करेक्ट इनकरेक्ट, और साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा? 2 से 3 लाइन का रीज़न. वहाँ पे पूरा का पूरा पेज भरना, आधा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है. अराउंड 2 to 3 लाइन्स विच इज़ रेलेवेंट, उतना लिखने के आपको मार्क्स मिल जाएंगे. पर लेकिन दोनों लिखना पड़ेगा, करेक्ट इनकरेक्ट एज वेल एज रीज़न. नेक्स्ट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट कैन बी सूटेबल फॉर अदर एविडेंसेस दैट द ऑडिटर कुड एक्सपेक्ट टू बी रीजनेबली अवेलेबल. तो भाई ये भी गलत हो जाएगा. तो हमारे पास क्या चाहिए भाई? हमें सबूत चाहिए, बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से चलेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वो ऑडिट एविडेंस है, बट क्या वो अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या? नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैरा 3 क्लॉज 1D ऑफ कारो 2020, an auditor needed to report whether the company has valued its property, plant and equipment or intangible assets or both during the year end, and if so, whether the valuation is based on the valuation by a registered valuer. Specify the amount of change if the change is 5% or more. तो सब कुछ सही था, बट लेकिन ये जो 5% उन्होंने बोल दिया वो गलत है. भाई यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 10%. तो ये चीज़ सही नहीं है. वापस ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. Next, communicating key audit matter in the auditor's report is a substitute for reporting in accordance with SA 570 when material uncertainty exists relating to events or condition that make us significant doubt. तो वापस incorrect है. क्या key audit matter substitute है क्या? नहीं. याद करो हमारा वो आंसर. It is not a substitute for disclosures which are required. It is not a substitute for giving a qualified opinion, modified opinion. It is not a substitute for what? Going concern para, and it is also not a separate opinion on individual matters. तो ये आंसर क्या हो जाएगा? Incorrect. Next, a loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 1 crop season
भाई 1 क्रॉप सीजन नहीं 2 क्रॉप सीजन तक रहता तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को हम क्या कहते हैं, एनपीए। वापस ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एग्रीकल्चर एडवांसेस के ऊपर सीए फाइनल के आरटीपी पे भी फोकस किया गया है, तो थोड़ा ज्यादा गौर फरमाइए, बिकॉज हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। It needs to be ensured that drawing power is calculated as per the exact guidelines formulated by RBI and agreed upon by the concerned statutory auditors। अरे भाई ड्राइंग पावर तो कौन डिसाइड करता है, उनका BOD, और उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो वापस आंसर क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट। The duties and powers of Comptroller and Auditor General in relation to the audit of accounts and government companies shall be performed and exercised by him in accordance with the provisions of the Comptroller and Auditor General Duties and Powers of Service Act 1971। अरे भाई ये कंपनी के ऊपर जब लगता है तो किसके हिसाब से लगता है, कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे ये सारे एक्ट जो उन्होंने दिए है कहीं लेना देना है, ये वापस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, बिफोर होल्डिंग इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्टर 30-day नोटिस मस्ट बी गिवन टू द मल्टी स्टेट। अरे भाई 30 डेज का नहीं, कितने दिन का देते हैं, 15 डेज का। तो वापस ये आंसर भी क्या है, इनकरेक्ट। तो सारे के सारे जो ऊपर 8 है, 8 के 8 क्या है, इनकरेक्ट। बट लेकिन सिर्फ इनकरेक्ट लिखने से काम नहीं बनेगा, साथ ही साथ हमें क्या लिखने पड़ेंगे, इसके रीजंस एज वेल। अब शुरुआत करते हैं विद द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आता है फ्रॉम द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। The IESBA code establishes the fundamental principle of professional ethics relevant to the auditor when conducting an audit of financial statement. Discuss and also explain the meaning of ethics. तो भाई ये बहुत सिंपल है, पर लेकिन काफ़ी बार स्टूडेंट्स सिर्फ क्या लिख के आते हैं, पूरे के पूरे बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, इंटीग्रिटी। मतलब हमें क्या रहेगी भाई, इंटीग्रिटी रहेगी, मतलब हम क्या रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, मतलब भाई हम कहीं पे भी हमारा डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कहीं पे भी हम बायस्ड नहीं होंगे। फिर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे और प्रोफेशनल बिहेवियर रखेंगे। तो बस यही 5 पॉइंट लिखने, तो गलती ना कीजिएगा। तो वेरी सिंपल आंसर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, whereas standard on review apply on review of historical financial statement, explain in detail giving examples। तो याद करो हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था जो हम लेक्चर्स में पढ़ रहे थे। मैंने वहां पे क्लासिफाई करके बताया था कि व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज रिव्यू, व्हाट इज अश्योरेंस, व्हाट इज रिलेटेड सर्विस। वहां पे भी पब्लिक को बोला था कि भाई देखो इसके ऊपर सवाल आने की संभावनाएं हैं और छोटे मोटे एमसीक्यूज तो आते ही है। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या पूछ लिया वो लोग ने क्वेश्चन, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए, डेफिनेटली एक बार यहाँ से क्या किया जाए, रेफर। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हैव स्टडीड विद अस, तुम्हें ऑलरेडी ये आता है बिकॉज हम ये चर्चा कर चुके हैं कि रिव्यू और अश्योरेंस के बीच में, रिव्यू और ऑडिट के बीच में फर्क क्या है। सी दोनों किसके ऊपर डील करते हैं, हिस्टोरिकल के ऊपर। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट। अगर मैं हाई एश्योरेंस देता हूं बट नॉट एब्सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑडिट। क्या हाई एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो ये क्या हो जाता है, ऑडिट। पर अगर मैं एक मॉडरेट एश्योरेंस देता हूं बट नॉट हाई एश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, रिव्यू। ऑडिट को गवर्न करने के लिए होता है एसए और रिव्यू को गवर्न करने के लिए होता है एसआरई। कृपया करके अपने बेसिक कंसेप्ट नंबर 5 में जाइए, जहां पे हम ये कर चुके हैं। वहां पे हम ये पूरा चार्ट बना चुके हैं, एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस। तो एक बार उसे रेफर कीजिए और वापस ये आंसर पे आइए। यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, whereas standard on review apply in review of historical financial information। ठीक है, remember that standards on audit apply in audit of historical financial information which is reasonable assurance. Reasonable is high assurance but not absolute, whereas the engagement on review apply in historical financial information which is limited assurance engagement only। मतलब हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ moderate assurance। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर एंटिटी, derived primarily from the entity's accounting system, economic events occurring in the past time periods or about economic condition and circumstances point in the past time period। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 31 ऑफ मार्च 21 की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं, ये हिस्टोरिकल है, बीत चुका।
बट एज ऑफ टुडे अगर मैं 21-22 की बात करूं तो भी वो बीत नहीं चुका, कॉस मार्च चल रहा है। अगर मैं 22-23 की बात करूं तो क्या हिस्टोरिकल है ना? नहीं, वो आने वाला है। तो हिस्टोरिकल मतलब जो बीत चुका, पास्ट की बात है, ठीक है। हियर वी हैव टू ब्रॉडली अंडरस्टैंड ऑडिट एंड रिव्यू आर टू डिफरेंट टर्म्स। ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस and its objective is to reduction in the assurance engagement risk to an acceptably low level। मतलब हम ऑडिट रिस्क को क्या करना चाहते हैं? कम। However, review is a limited assurance engagement and is objective in reduction of the assurance risk to a level that is acceptable in circumstances of the engagement। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिव हैव बीन इशूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज। मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए, नीचे वो लोग ने एग्जाम्पल दे दिए हैं कि भाई अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या है, जिसको तो आपको आता ही होगा। पर यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है कि उन्होंने एसआरई के भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे। तो एसआरई 2400 किसके बारे में बात करता है? एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2410 किसके बारे में बात करता है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। ये दोनों एसआरई अपने पोर्शन में एज सच नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये आंसर के लिए एग्जाम्पल के दौर पे क्या करना होगा, इसे याद रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा आंसर था, इसे कृपया करके इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। जो जो आंसर्स ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े अनोखे हैं, उसको मैं स्टार मार्क करवाते जाऊंगा, तो एटलीस्ट वो आंसर्स को आपको गहराई में उतर के क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट, the code of ethics for professional accountants prepared by the International Federation of IFAC identifies 5 types of threat। explain those threats। ठीक है, तो आई अज्यूम सबको ये आंसर आता होगा, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, तो ये सारे हमारे क्या है भाई, अलग अलग टाइप के थ्रेट्स है। ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं एंड आई अज्यूम सबको ये आंसर बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। Engagement partner CA Hitesh Kapoor of Kapoor and Associate wanted to develop an audit plan of Sampurna Fabrics Limited। Discuss the matters to be described in such an audit plan। अरे तो भाई ये भी चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है, पर पब्लिक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 को बहुत ज़्यादा डिटेल में रिवाइज नहीं करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 और 4 के सारे आंसर्स को यहाँ पे वापस एक बार डिस्कस करने वाला हूँ, इवन दो यू हैव डन इट ऑलरेडी। उस बहाने ये आंसर्स थोड़े और क्या हो जाएंगे हमारे रिवाइज। तो जब भी हम लोग क्या बना रहे हैं एक ऑडिट प्लान, तो हमें वहाँ पे क्या डालना चाहिए? सबसे पहले अपनी एनटी, तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड रैप। अरे हमारा जो भी रैप है दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर 3.5 आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, तो 3 एनटी वो लिख दूंगा। फिर एनटी ऑफ फैप लिख दूंगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रैप हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एनटी ऑफ फैप क्या होगा, वो भी। एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। अगर तुम्हें याद हो SA 300, वहां पे हमने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में हम लोग ने लिखा था कि प्लान में क्या क्या आएगा, एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप और अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम हमारे एसएस कहते हैं। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द स्ट्रैटेजी। हमें पता है, हमने भी देखा था कि पहले क्या बनती है स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन दैट क्या बनता है प्लान। तो प्लान ज्यादा डिटेल होता है, which includes the nature, timing and extent of audit procedures to be performed। Planning of this audit procedures takes place over the course of audit as the plan for the engagement develops। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिए गए हैं भाई एग्जाम्पल। Planning of the auditor's RAP occurs early in the process। However, planning the nature, timing and extent of further procedures depend on the outcome of RAP। तो RAP तो हम पहले लगाते हैं, अब फैप कितना लगेगा वो डिपेंड करता है रैप के ऊपर। अगर ROMMS ज्यादा तो एनटी ज्यादा फैप की, ROMMS कम तो फैप की एनटी कम। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बट ये आंसर पढ़ा क्यों मैंने, जस्ट सो दैट यू रिवाइज द सेम क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस a proper audit is not possible। The auditor shall obtain an understanding of the entity's objectives and strategy and those related business risks that may result in ROMMS। Explaining examples, तो भाई we need to understand the entity and its environment। तो भाई ये भी हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम इसके आंसर को एक बार रीड करेंगे। तो ये क्या बोला गया है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान। In fact, without adequate knowledge of the client's business, proper audit is not possible।
SA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and environment. Auditor shall obtain an understanding of the entity and its environment. The auditor shall obtain an understanding of the entity's objectives and strategy and those related business risk. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे दिए गए हैं. If one of the management's objective is to grow the business, management may develop a strategy of steady but regular growth through specific marketing campaigns XYZ. ठीक है. Each of this strategy give rise to the differing business risk. तो अब वो लोग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उससे भी डिपेंड करेगा कि रिस्क कितना होगा. एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड फेलियर टू कीप अप टू डेट टू द न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी. तो अगर हम लोग ने अप टू डेट नहीं रखा है, टेक्नोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे. एक्सेसिव रिलायंस ऑन अ की सप्लायर प्रोडक्ट और इंडिविजुअल सच एज ओनर. एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, सारा माल उसी के पास से ले रहे, आंख बंद करके किसी और के पास प्राइस कंपेयर भी नहीं कर रहे. लैक ऑफ पर्सनल विद एक्सपर्टीज. अरे मतलब एक्सपर्टीज वाले पे हमारे पास बंदे नहीं है जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज हो. Insufficient or excessive production capacity caused by inaccurate estimation of demand. And lastly आता है loss of financing due to the entity's inability to meet the financial convenience. मतलब हम लोग अपने डेट अग्रीमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, टाइम पे EMI नहीं पे कर रहे हैं, तो अब नया पैसा मिलने वाला नहीं है. नेक्स्ट, you are appointed as the auditor of Track Limited for the first time. You want to determine the materiality level, and for that you are applied the percentage to a chosen benchmark as a starting point in determining the materiality for the financial statement as a whole. What are the factors that may affect identification of appropriate benchmark? ऐसे 320 का एक क्वेश्चन जो मैं लेक्चर्स में भी इंपॉर्टेंट मार्क करवा चुका था, याद करो. फोकस ऑन वायलिन करके हमारा एक कोड था जिसके हिसाब से हम लिखते थे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर फोकस है, नेट प्रॉफिट XYZ. फिर बाद में रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, इंडस्ट्री में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर बाद में हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, डेट ज़्यादा है कि इक्विटी ज़्यादा का क्या है, लाइफ साइकिल में हम कहाँ पर है, कोई भी एलिमेंट ले लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं. तो फोकस ऑन वायलिन वाला आंसर आ जाएगा. अब आता है चैप्टर 3 आपका फेवरेट, विच इज बेस्ड ऑन नथिंग एंड नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. क्वेश्चन 6. While conducting the audit of PUMMI Limited, the statutory auditors collected written representation from management. The audit was finalized in addition to other procedures but without making any inquiry, as the statutory auditors were short of time. In this light of information, state the importance of inquiry as one of the methods of collecting evidence. याद करो अपना नोट्स का SA 500. SA 500 में मैंने स्पेसिफिकली तुमको इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन 5 में एक नोट लिखवाई थी. मैंने बोला था इंक्वायरी क्या होती है हमें आता तो है, पर लेकिन एग्जाम में 4 मार्क का प्रश्न आए तो लिख नहीं पाओगे. तो याद करो इंक्वायरी 2 तरीके की हो सकती है, फॉर्मल रिटर्न या इनफॉर्मल ओरल. जहाँ पे हम ओरल इंक्वायरी कर रहे हैं हम वहाँ पे क्या ले सकते हैं उनसे, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी. फिर बाद में जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उसे इवैल्यूएट भी करना है. हमें ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जो शायद पहले हमारे पास थी ही नहीं, या तो ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जो सिग्निफिकेंटली क्या कर रही है, डिफर कर रही है, और हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन शायद मॉडिफाई भी करना पड़े या प्रोसीजर्स बढ़ानी पड़े. तो ये हम डिटेल में सीख चुके हैं ऐसे 500 में. GPS and Company Chartered Accountants conducting the audit of Pratibha Limited, a listed company, for the year 31st March, is concerned with the presentation and disclosure of segment information included in the company's annual report. GPS and Company wanted to ensure that methods adopted by the management for determining segment information have to result in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework. Guide GPS and Company with examples of matters that may be relevant when obtaining understanding of the methods used by the management. भाई कृपया करके इसे भी क्या मार्क करें, इम्पोर्टेंट. SA 501 में सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में. अगर याद करो मैंने बताया था इन्वेंट्री के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, लिटिगेशन एंड क्लेम के भी, बट सेगमेंट रिपोर्टिंग कंपैरेटिवली कम पूछा गया है. तभी भी मैंने बोला था एक छोटा सा आंसर है, उसे अच्छी तरह से कर लो, बिकॉज अगर आ गया तो भाई जैकपॉट है. तो यहाँ पे RTP उसी के बारे में पूछ रहा है, तो लेट अस गो थ्रू दैट.
Auditors, GPS and company wanted to ensure to obtain sufficient and appropriate audit evidence in the presentation. ठीक है, पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है. फिर ऐसे 501 guides in this regard, because 501 बात करता है. ऐसे 501 audit evidence specific consideration for selected item. Example of matter that may be relevant when obtaining understanding of the method used by management in determining segment information and whether such methods are likely to result in disclosure with the AFRF. ये भी हम लिख चुके थे हमारे नोट्स में, बट अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास क्या मांगे हैं, एग्जाम्पल्स. तो ये एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे. आई होप आप लोग ने इसके साथ साथ ऑलरेडी आपके अकाउंट्स में क्या पड़ा हुआ है, AS70. तो यहाँ पे हमें क्या एग्जाम्पल्स है, सेल्स, ट्रांसफर, चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स. तो जो भी इंटर वाले ट्रांजैक्शन है हटा दो. Comparison with the budgets and other expected results, for example operating profit as a percentage of sales, allocation of assets and cost among segments, consistency with the prior period. तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, बिकॉज आप कहाँ पे कर चुके हो, ये AS17. बट लेकिन डेफिनेटली इसे यहाँ से रीड करना है, वरना ऑडिट के पेपर में याद रहेगा नहीं. तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव मार्क्ड इंपॉर्टेंट. एक हम कौन सा कर चुके थे, 2B. अब दूसरा मैं कौन सा करवा चुका हूँ, 7A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 501, जो कंपेरेटिवली आसान है. पंचरंगा इंटरनेशनल लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ पिकल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जैम्स एक्सेट्रा, हैविंग इट्स प्लांट इन जयपुर. Being in the food industry, the company is facing many litigation in various courts across India. Auditors of SPV and company wants to identify such litigation and claims involving the company which may give rise to ROMMS. Guide the auditor as if how they should proceed. तो भाई हमारा किसके बारे में है, लिटिगेशन क्लेम. याद करो, हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, इंक्लूडिंग द इन हाउस लीगल काउंसिल. फिर जो भी मीटिंग्स हुई है उसके हम मिनट्स पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं लीगल एक्सपेंस अकाउंट. और अगर हमें लग रहा है अभी भी ROMMS बहुत ज़्यादा है, तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकते हैं एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से. एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ जो जो करस्पॉन्डेंसेस हुए वो भी पढ़ सकते हैं. तो ये आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो. Next, TRS and Associate Chartered Accountants, having completed the audit of Genuine Leathers Limited, has started the assembly of the final file. TRS and Associates had established policies and procedures for the timely completion of assembly of the audit files. Explain the various aspects related to the audit file discussed as per SA 230, giving specific reference to SQC 1 wherever required. तो अब देखो, SQC 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कितने टाइम में हमें हमारी ऑडिट फाइल बना देनी है, कितने टाइम में कंप्लीट कर देना है, कौन सी चीज़ों में हम चेंजेस कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते. तो ये पूरा SQC को मिला के क्या कर दिया, एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो एक बार के लिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा. देखो, याद करो, 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, चेंजेस नहीं कर सकते, बट लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नोट्स में कर चुके हैं. अब आता है चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक की हालत ख़राब होती है, काफ़ी सारे लोग के आंसर सही से नहीं जाते. तो यहाँ पे ये चैप्टर के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है. सबसे पहला क्वेश्चन तो IT बेसिस के ऊपर ही है. जनरली IT बेनिफिट्स एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल बाय एनेबलिंग एन एंटिटी टू एनहांस द टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन. डिस्कस एक्सप्लेनिंग द अदर रेलेवेंट पॉइंट्स इन द अबाउ कंटेक्स्ट. तो अर्थात पूछे जा रहे हैं कि IT के और बेनिफिट्स क्या है. तो भाई IT के सारे जो दूसरे बेनिफिट्स है वो सारे के सारे बेनिफिट्स लिखने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ भी हम कर चुके हैं कि IT के भाई दूसरे बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बार बार लगातार पूछा गया है. वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड, engagement team of HTR and company has considered materiality in audit risk throughout the audit. डिस्कस एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क. अब ये ऑडिट रिस्क क्या होता है, हम बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते आ रहे थे. ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, ROMMS और दूसरा क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क. ROMMS के वापस दो कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वापस हमारे नोट्स में है, वही सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 10. Saburi Limited is an established player in the textile manufacturing sector. It has developed a strong internal control in almost every area. It has appointed you as an internal audit team head.
The internal audit has a very strong relation with the internal controls of the company. The internal audit analyzes the effectiveness with which the internal control of the company is operating and also makes suggestions for the improvement in the internal control. Explain clearly the activities relating to the internal control. तो इंटरनल कंट्रोल को हम इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है, ये भी हम कर चुके हैं. पहले क्या करो, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड रिव्यू द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11 जो आपका काफ़ी हद तक फेवरेट है. सीए देव of D.R. Sanduja and Company, statutory auditor of the company, Girija Fabs Limited, in the course of the performance of his duties as auditor, has reasons to believe that an offence of fraud to the tune of rupees 1.25 crores has been committed by the in the company by its employees. C.A. Dev, the auditor, wanted to report the matter to the central government as per the law. He refers to the Rule 13 of the Companies Rules 2014. Sub-Rule 1 of the said rule states that if an auditor of a company in the course of the performance of his duties as statutory auditor has reasons to believe that an offence of fraud in which involves or is expected to involve individually amount of 1 crore or above is being or committed against the company by its employee or officers, the auditor shall report the matter to the central government. In the above context, explain the manner of reporting. तो भाई यहाँ पे याद करो हमारा एग्जाम्पल, सीए गब्बर को फ्रॉड मिला तो हम जाके बताएंगे कि भाई सबसे पहले रिपोर्ट करो इमीडिएटली टू द ऑडिट कमेटी और बोर्ड, मैक्सिमम विद इन 2 days, और उनसे क्या लो, रिप्लाई लो 45 days के अंदर. उनका रिप्लाई आया तो हम सीजी के पास चले जाएंगे 15 days के अंदर, सीजी को क्या देंगे, रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेंगे. तो वो पूरा प्रोसेस में आप प्रो हो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट, while conducting the audit of Always Best Company Limited, auditor of B and BL Kapoor observes a lot of intentional misstatement, that is fake invoices, and considers this encounters as exceptional circumstances and brings into question the ability to continue to perform. तो याद करो अगर फ्रॉड है और उसके वजह से हमारे प्रश्न उठ रहा है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को भी हमने ड्यूरिंग द लेक्चर्स इंपॉर्टेंट मार्क किया था, तो बस वही पूरा आंसर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो रिपीटेटिव क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 में भी विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिटेड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एप्लीकेशन क्या होता है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैट क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग एंड जनरल आईटी कंट्रोल जो हमें ऑलरेडी आता है. नेक्स्ट, explain the meaning of internal financial control IFC, clearly stating the reporting requirements. तो क्या क्या रिपोर्ट करना है, also discuss about its applicability. अब एप्लीकेबिलिटी हम कंपनीज एक्ट में पढ़े हैं और क्या क्या डिस्क्लोज करना है चैप्टर 6 में पढ़े हैं, तो हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है वहां पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देना है. From the above definition, it is clear that internal financial control are policies and procedures adopted by the company for ensuring orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the company's policies, safeguarding its assets, prevention and detection of errors and fraud, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation. किसको ये एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी, अगर तुम एक 1% कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड जिसका क्या है बोरोइंग कितना है 25 करोड़ से कम है, तो ये हम कहाँ पे पढ़ चुके, कंपनीज एक्ट, और ये वाले 5 पॉइंट हम कहाँ पे पढ़ चुके, चैप्टर 6. तो दोनों का ब्लेंडेड क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक एंड ऑडिटिंग. इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक के क्या है एडवांटेजेस वो लिखिए जो हम कर चुके हैं. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू 2 टाइप्स ऑफ एरनियस कंक्लूजन. तो याद करो हमारा सैम्पलिंग रिस्क हमने चार्ट फॉर्म में पढ़ा था. इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली आर, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज. तो वही वाला पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट, if analytical procedures performed in accordance with 520 identify fluctuation or relation that are inconsistent with the other relevant information or differ from the expected values by a significant amount, how would you as an auditor investigate? तो investigate हम कैसे करेंगे, याद करो इंक्वायरी कर लो सीधा मैनेजमेंट से, बट अगर मैनेजमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या उनका रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट लगा तो हम अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. तो इन्वेस्टिगेशन वाला आंसर.
discuss the matters relevant to the auditor's evaluation of whether expectation can be developed sufficiently precise to identify a misstatement when aggregated with other misstatement. याद करो मैंने इसे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि नए मॉड्यूल में एक नया छोटा सा एडिशन आया हुआ है, तो हम हमारे आंसर में लिख चुके थे, याद करो अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे हमने बोला था अदा, तो भाई कितना एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो, डिसएग्रीगेशन क्या है, तो वो सारे आंसर्स, वो पूरा आंसर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हम कर चुके हैं. Next, chapter number 9. Explain how will you verify items given while conducting an audit of entity. अब ये चारों के चारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो आरटीपी के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. तो अगर आप पास्ट आरटीपीज भी देखोगे तो यही क्वेश्चन क्या किए गए हैं, बार बार लगातार घुमाए गए हैं. सिर्फ 20th वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सा क्या आ रहा है, अनोखा आ रहा है, क्योंकि यही आरटीपी में स्टार्टिंग में उसके बारे में क्या किया गया था भाई, जिक्र किया गया था. तो वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एयरस्पेस लिमिटेड, the auditor observes that it has issued shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of debt restructuring scheme in accordance with any guidelines specified by RBI. Discuss explaining clearly the provisions relating to discount on issue of shares and verification. तो भाई ये आंसर ऊपर ही वो लोग ने छाप के दिया था, हमने वहाँ पे बोला था कि भाई व्हेन वी गो टू क्वेश्चन 20 हम डिस्कस करेंगे, तो आ गए वो समय, एक बार हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन अंडर सेक्शन 54. Any shares issued by a company at a discount price shall be void. Nothing contained herein in subsection 1 and 2. Company may issue shares at discount to its creditors when its debt is converted into equity shares pursuant to any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by RBI. तो भाई हम लोग क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, बट लेकिन एक क्रेडिटर को जो डेट गया था क्या उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेयर्स. यस. वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी एंड ऑफिसर हु is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at discount or 5 lakh rupees less. तो कितना शेयर से इशू मतलब रेज किया था उतना पेनल्टी, या तो 5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम है. एंड द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल द मनी, तो जो भी पैसा ऐसा आया है उसको दे देना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम. कितने ब्याज के साथ, 12% ब्याज के साथ. अब यहाँ पे हमें एज एन ऑडिटर क्या चेक करना है, मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एंड वेर एवर देयर इज एनी इशू. तो कोई इशू हुआ है तो देखो बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है. He should verify the company has not issued any of its shares at a discount by reading the minutes of the meetings. ठीक है, जहां पे भाई अथॉराइज किया जा रहा है उसके मिनट्स पढ़ो, उस मिनट से पता चलेगा कि भाई डिस्काउंट पे तो नहीं है. Further, the auditor should also verify in case the company has issued shares at a discount to creditors when its debt is converted into shares in pursuant to any statutory resolution plan. तो जो अपन ने ऊपर बोला था जो अलाउ किया गया था उसे भी हमें डिटेल में चेक करना पड़ेगा. तो ये हमारा था क्वेश्चन 20 जो किसके ऊपर फेस कर रहा था, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए बिकॉज ये आरटीपी में ये नया नया पॉइंट दिया गया है जिसके ऊपर सवाल आ सकता है. नेक्स्ट, द कंपनी ऑडिट. Before the appointment is made under section 139(1) the Companies Act 2013, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him or it is at the appointment if made shall be in accordance with the condition as may be prescribed shall be obtained from the auditor. Explain stating clearly the provision of section 139 along with rule 4. तो जब भी हम उसको अपॉइंट करते हैं उसके पास से हम क्या ले लेते हैं, एक रिटर्न कंसेंट. रिटर्न कंसेंट में क्या लिखवाते हैं, 4 चीज़ें कि भाई तू क्या है, क्वालिफाइड है, अपॉइंटमेंट इज एज पर द एक्ट, अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स. बस वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है. हैरी लिमिटेड अपॉइंटेड CL Lakshman as an auditor of the company for a term of 5 years. Further, the company offered him the services of actuarial which were also approved by the BOD. As an auditor, how would you deal? तो भाई जो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, क्या सेम बंदे को हम एक्चुअली सर्विसेज देने दे सकते हैं? नहीं, ये क्या हो जाएगा 144 वाली सर्विसेज, तो हम ये दे सकते नहीं है.
Explain the reporting requirements the auditor should ensure under CARO reporting under PPE and intangible asset. मतलब ये सबसे पहला क्लॉज पूछा जा रहा है जिसके अंदर ABCDE है, पूरा का पूरा क्लॉज स्टार्ट टू एंड हमें यहाँ पे समझाने को बताया गया है, तो ये भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट आता है ऑडिट रिपोर्ट. The auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirements of AFRF. Explain stating clearly the evaluations made by the auditor. तो अब AFRF सही है कि नहीं उसके लिए हम क्या देखते हैं. The auditor shall evaluate whether the financial statement are prepared in accordance with AFRF. ये तो हमारा प्री कंडीशन था, बिकॉज AFRF ही एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम बात ही आगे नहीं बढ़ाते. The evaluation shall include consideration of qualitative aspects of the entity's accounting practices, indicators of the possible bias in the management judgment. तो भाई ये चीज़ भी हम कर चुके हैं. In particular, the auditor shall evaluate what? A financial statement adequately disclose the significant accounting policy selected and applied. तो जो भी पॉलिसी सिलेक्ट की है, अप्लाई की है, क्या वो सही तरह से डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं. फिर द अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट विद द AFRF. तो जो भी सिलेक्ट किए है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या वो AFRF के हिसाब से है. फिर मैनेजमेंट ने जो भी एस्टिमेट लिए है क्या वो रीजनेबल है. फिर इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की है क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो कंपेरेबल है एंड क्या वो अंडरस्टैंडेबल है. The financial statement provide disclosures to enable the intended users to understand material transaction and events. तो क्या सही तरह से material transaction और events को convey किया जा रहा है कि users अपने decision ले सके, और जो terminology हम लोग ने use की है वो सही है कि नहीं है. अगर याद करो तो ये पीछे की जो क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक में ये सेम आंसर हम वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं. फर्दर, when the financial statements are prepared in accordance with the fair presentation framework. क्या in accordance with what? Fair presentation framework. The evaluation mentioned above shall also include an evaluation of auditor as to the financial statement achieve fair presentation, which shall include ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जब हम फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ऊपर जो है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स प्रेजेंटेड अंडरलाइंग मैनर इन दैट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन. मतलब उस तरीके से किया गया है कि भाई फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये आंसर को हमें यहाँ से एक बार रेफर करना होगा. ठीक है, जो हम ऑलरेडी पुराने पास पेपर्स के क्वेश्चन में हमारी जो क्वेश्चन बैंक कर रहे थे उसमें हम कर चुके हैं. Next, question 25. When the auditor disclaims on the financial statement due to inability to obtain a sufficient and appropriate audit evidence, the auditor shall amend the description of auditor's responsibility. तो जब हम disclaimer देते हैं तो हम auditor's responsibility में क्या लिखते हैं? सिर्फ ये तीन चीज़ें लिखेंगे. That a statement that auditor's responsibility is to conduct the audit in the entity when in accordance with the standard on auditing. तो ऐसे के हिसाब से करेंगे. दूसरा, a statement that however because of the matter described in the basis of disclaimer of opinion para the auditor was not able to obtain psi. तो हम सबूत ढूंढ पाए नहीं. And lastly, a statement about the independence and ethical responsibilities as per SA 700. तो जब हम डिस्क्लेमर देते हैं तो बस यही तीन चीज़ हमें लिखनी है. तो ये वाले पॉइंट को भी क्या मार्क कर दिया जाए? इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, there are different provisioning requirement as regards to the categories of NPA as substandard, asset, doubtful and loss. तो explain in detail. तो ये आपको आता है कि substandard कब होगा, doubtful कब होगा, loss कब होगा, ये हम कर चुके हैं. Next, for an operating for the following in the context of a bank audit, for audit of operating expenses, frequently asked question, हम already पहले इसे कर चुके हैं. फॉर ऑडिट ऑफ, अब ये एक थोड़ा अनोखा चीज़ आ रहा है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज. द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट कंप्लाइंस विथ वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजन एज कंटेंट इन वेरियस सर्कुलर्स हैव बीन फुलफिल्ड. तो एक बार हम ये प्रोविजन की करते हैं. हम लोग ने जो आंसर पढ़ा है वहाँ पे हम लोग ने प्रोविजन के लिए पढ़ा है. ठीक है, कि भाई प्रोविजन के लिए हम क्या करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है. तो लेट अस गो थ्रू दिस आंसर. फॉर द ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट compliances for various regulatory requirement for provision as contained in the various circular have been fulfilled.
The auditor has to obtain understanding as how the bank computes provision on standard and non-performing asset. तो हमें समझना पड़ेगा ये किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस सबके हिसाब पर बराबर से किया गया है कि नहीं। तो ऑडिटर में वेरीफाई द लोन क्लासिफिकेशन ऑन अ सैम्पल बेसिस, कि सही तरह से क्लासीफाई हुआ है कि नहीं, बिकॉज अगर क्लासिफिकेशन ही गलत है तो ऑब्वियसली बाकी की सारी चीज़ें भी गलत होगी। The auditor should obtain a detailed breakup of standard loans, non-performing loans and agree to the outstanding balance with the general ledger. तो देखो कि भाई जो टोटल हो रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो ऑडिटर शुड obtain टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन, देखो कि ये लोग ने जो भी टैक्स प्रोविजन किया हुआ है, जो भी इनकम ली है, जो भी एक्सपेंस लिया है और उसके हिसाब से जो भी टैक्स प्रोविजन किया है, क्या वो कैलकुलेशन सही है। सो इन अ वे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकम्प्यूट करके देख रहा हूँ कि उनका प्रोविजन सही है कि नहीं। The other provision for expenses should be examined with the circumstances warranting the provision. तो जैसे हम दूसरे एक्सपेंसेस के लिए करते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन जो हमें यहाँ से रेफर करना पड़ेगा। पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड। तो पिल्फरिंग मतलब क्या, छोटी मोटी चोरी होटल्स में और सब जगह पे होती रहती है। छोटे मोटे भाई वहाँ पे स्टाफ है, कोई छोटी मोटी भाई तुम जो शैम्पू की बॉटल झाप के जाते हो स्टाफ छाप के चले गया, ठीक है। काफ़ी सारे छोटे मोटे असेट्स होते हैं वहाँ पे से स्टाफ लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी कॉमन होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब क्वेश्चन में देखोगे तो पिल्फरिंग से ज़्यादा इन जनरल हमारे सारे इंटरनल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए एक होटल में, वो सारी चीज़ समझाई गई है। तो पिल्फरिंग is one of the greatest problem in any hotels and importance of internal control cannot be undermined. It is the primary responsibility of the management. अरे इंटरनल कंट्रोल बनाने की किसकी है, मैनेजमेंट की। हम तो सिर्फ उसे क्या करते हैं, असेस करते हैं। एविडेंस ऑफ द सक्सेस इज प्रूव्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ रेगुलर परहैप्स वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर ईच सेल्स पॉइंट एंड डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेजेस। तो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और वहाँ पे डिटेल स्क्रूटिनी करो कि पता चले सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन दिस रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर अ पीरियड अंडर रिव्यू, एग्जामिन देम एंड ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर डिविएशन। तो कहीं पे भी डिविएट हो रहा है तो भाई देखो। फिर ऑल्सो द ऑडिटर शुड वेरीफाई फ्यू रेस्टोरेंट बिल्स बाय रेफरेंस टू KOT किचन ऑर्डर टिकट्स और बेसिक रिकॉर्ड। अरे हो सकता है कि वहाँ पे बोला गया कि भाई ऑर्डर किया गया है पर ऑर्डर कुछ किया नहीं गया रहेगा, स्टाफ क्या करेगा, घर पे खाना लेके जाएगा। तो यहाँ पे KOT हमें चेक करने पड़ेंगे। दिस वुड अनेबल द ऑडिटर टू एंश्योर दैट कंट्रोल्स रिगार्डिंग रेवेन्यू साइकिल आर इन ऑर्डर। तो ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ के जो भी टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं हर एक चीज़ के ऊपर सही तरह से पे किए जा रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। If the internal control in the hotel is weak or perhaps break down, there are various serious problems जो हम लोग फेस करेंगे। तो इसलिए हमें सारे इंटरनल कंट्रोल्स को वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 29B, no inspection under section 79 of the multi-state cooperative society shall be made unless a notice has been given to the multi-state cooperative society. Explain stating clearly when and how such inspection can be made. Also state the powers with the central registrar in this regard. तो ये आंसर भी हम हमारे चैप्टर नंबर 13 में आखिरी पार्ट देखोगे तो वहाँ पे कर चुके हैं कि क्या प्रोसेस होता है एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्या पावर्स है। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन ऑफ RTP दैट इज May 22। अब यहाँ पे से अगर हम देखें तो मैंने काफ़ी सारी जगह पे आपको क्या मार्क करवाए थे, स्टार मार्क। तो अब क्या करोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करोगे, एक बार रेफर करोगे। आई विल स्टिल शो यू कि कौन से क्वेश्चंस को आपको एक बार वहाँ पे क्या करना है, रेफर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2B है, 7A है, 18 है, 20 है, 24 है, 25 है, 27B है एंड 28 है। दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस विच आर अ रियली नाइस क्वेश्चन जिसे आपको देखना चाहिए। दो आपको आते हैं, ऑलरेडी हमने नोट्स में किए हुए हैं बट अलग तरीके से पूछे गए हैं जिसे एक बार आप डेफिनेटली देख के जाइएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्कशन ऑफ ऑडिट RTP May 22। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी May 22 के ही हैं उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बट जो स्टूडेंट्स नवंबर 21 से आए हुए हैं या उसके पहले वाले अटेम्प्ट के, कृपया करके भूलिए नहीं कि आपको साथ ही साथ क्या करना है, कारो 2020 जो पहले आप क्या कर चुके थे कारो 2016, तो डेफिनेटली प्लीज़ आप उसे कीजिएगा। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, हमारा ऑलरेडी जूम लाइव पे लेक्चर हो चुका है, आप ऑलरेडी कारो 2020 अटेंड कर चुके हो। कारो में ज़रूरी है कि आप क्या याद रखो, उसके क्लॉजेस, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि क्या टेक्निक है जिससे 21 के 21 क्लॉजेस हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड लेक्चर, नो वरीज। बट अगर कोई नवंबर 21 या उससे पहले अटेम्प्ट का है और जिसे कारो 2020 नहीं आता है, तो आप online.jkshaclasses.com पे जाके इफ़ यू वांट यू कैन बाय दैट सिंगल चैप्टर, ठीक है। और वहाँ पे आप सिर्फ क्या रेफर कर सकते हो, कारो 2020। With this, I will finally put an end to this particular session. Thank you very much. See you all in the next season, that is CA Final. जल्द ही मिलते हैं फिर एक और, बाय माय फ्रेंड्स। Thank you very much.